गुलबर्गा शहर के यदुल्ला कॉलोनी में स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल रीओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा और यादगीर प्रेसिडेंट जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान साहब के हाथों किया गया है। स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एसबीके एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर चल रहा है और इसको मिसेस एंड मिस्टर सरफराज खान मैनेज कर रहे हैं। इस स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन के साथ इस्लामिक एजुकेशन भी दिया जाता है और स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में आप मॉन्टेसरी से 4th स्टैंडर्ड तक अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। इस स्कूल के मैनेजमेंट ने वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ के अलावा बढ़ती टेक्नोलॉजी को नजर में रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब रखा है, जिससे बच्चे छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो सकते हैं। और सबसे खास बात, इस स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने वाले और फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के रीओपनिंग के मौके पर मिस्टर एंड मिसिस बाबा नजर मोहम्मद खान साहब के अलावा डॉक्टर राबिया खानम, वाहिद अली फातेह खानी, अफान मकसूद अली, आरिफ हुसैन एमएटी, सैयद अकबर इरफान, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर इरफान महागेवी, कॉर्पोरेटर अयाज खान, कॉर्पोरेटर इमरान खान, मोहम्मद एहतशामुद्दीन, शेख मोहम्मद इस्माइल जमाई, हाफिजुल्लाह, अजमत फारूकी हाफिजुल्लाह और दीगर कई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने मिसेस एंड मिस्टर सरफराज खान को स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को रीओपन करने के लिए मुबारकबाद पेश कर यदुल्ला कॉलोनी की आवाम से अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन करवाने की गुजारिश की है। स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यदुल्ला कॉलोनी अलशारा डिग्री कॉलेज के पीछे मौजूद स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को विजिट करें।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان خصوصی صدر معلمہ اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس جلسے کے موقع پر آپ تمام استقبال کرتی ہوں. میرا نام زنیرہ فاطمہ ہے. میرے اسکول کا نام اسٹڈی بریج انٹرنیشنل اسکول ہے. سچائی دیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھو، سخاوت دیکھنی ہے تو حضرت عثمان کو دیکھو، بہادری دیکھنی ہے تو حضرت علی کو دیکھو، جنگیں دیکھنی ہے تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھو. عورت کی عزت کیا ہوتی ہے سلطان بن محمد قاسم سے پوچھو. شہادت دیکھنی ہے تو حضرت امام حسین کو دیکھو. پیاس کیا ہوتی ہے یہ حضرت عباس سے پوچھو. فلسطین کیا ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھو. صبر کیا ہوتا ہے یہ حضرت آسیہ سے پوچھو. چالے سرو اسٹڈی بریج انٹرنیشنل اسکول مکھیا دیدی بابا نظر محمد خان ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಕ್ಷಾ ಗುರು ಸ್ನೇಹತಾ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಗಡಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿವಾದಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರತಿದಿನಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅನುಸರಣೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಓದಿಸಲಾಗಿದೆ. میرا نام نورین شیخ ہے. میرے اسکول کا نام اسٹڈی بریج انٹرنیشنل اسکول ہے. مہمان خصوصی صدر معلم اساتذہ والدین اور میرے پیارے ساتھی، آج کے اس جلسے کے موقع پر آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. Respected Chief Guest, Principal Ma'am, teachers and parents and all my dear friends. Today I am going to importance of teacher. Teacher is a person who makes us full of knowledge. Teacher is considered to be the lamp of light. Before making a successful person who make good human being. ایجوکیشن کے فیلڈ میں جب ہم آ رہے ہیں تو یہ شروعات بتاتی ہے کہ اب ہمارے حالات انشاءاللہ چینج ہوں گے، کیونکہ اوپننگ کئی سارے چیزوں کی، ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، دوسرے کئی آفیسز کی اوپننگ ہے. اس میں اتنی خوشی یا اس چیز کا احساس نہیں ہوتا جتنا جو ہے نا اسکول اور ہاسپٹلس کو لے کے ہوتا ہے. ایز اے ڈاکٹر میں ہاسپٹل بھی اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہیلتھ کو بہت نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. ہیلتھ کی امپورٹنس کو بھی جاننا ہے اور اس سے سب سے پہلے ضروری ہے ایجوکیشن. تو اس اسکول سے جب میں پروگرامز دیکھ رہا تھا، سرفراز خان صاحب کی بڑی بیٹی جو اسپیچ دیے ہیں اس میں ایجوکیشن پہ اتنے سارے پوائنٹس بولے ہیں. اگر وہ ایک ایک چیز ہم اپنے بچوں کے یا پیرنٹس اگر اپنے دل میں اتار لیں تو ایجوکیشن کا صحیح مقصد سمجھ میں آ جائے گا اور تعلیم کس طریقے سے ایک معاشرے کو بدلتی ہے، اور وہ بدلنے کے لیے ہم پیرنٹس آگے بڑھ کے آئیں گے اور ہمارے بچوں سے توقع رکھیں گے کہ وہ علم کی فیلڈ میں جو ہے نا آگے آ کے ہماری مسلم کمیونٹی کو آج جو ہم سٹرگل کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والی ہماری جنریشن ایک خوبصورت دن، ایک اچھا جو ہے نا ہم کو
फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज ऐसे प्रोग्राम में आने की तौफीक दी जो इल्म के ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ है। मैं भी जो है सरफराज खान का वालिद रहने के बावजूद भी मुझको भी सरफराज खान ने तकरीबन फिनिशिंग तक ये स्कूल को नहीं बुलाया था। तो जब फिनिशिंग के करीब जो है, ओपनिंग के करीब है, जब मैं स्कूल को आया तो देखा, जैसा डॉक्टर इरफान ने कहा कि भाई माशाल्लाह जो है सरफराज खान को एक इंटरेस्ट आ चुका है कि एक अच्छा सा एक स्कूल बनाया जाए और कौम मिल्लत के लिए एक अच्छी तालीम जो है क़ायम किया जाए। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो भी सरफराज खान, उनकी बीवी जो है डॉक्टर बुशरा खान और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको सब के हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की कोशिशों को कामयाब फरमाए। कि ये इल्म इतना ज़रूरी है, और वो भी कौन सा इल्म जो इस्लाम में जो बताया गया, जो बच्चे हदीसें, कई बच्चे हदीसें पढ़े कि इल्म जो ज़रूरी क्या है, फ़र्ज़ क्या है, वो कुरान और सुन्नत का फ़र्ज़ है। कुरान और सुन्नत का इल्म पहले फ़र्ज़ है, और जो कुरान और सुन्नत का इल्म ले लिया उसको दुनिया इल्म तो आसानी से आ जाएगी इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से आखिरी में दुआ गो हूँ कि मैं तमाम स्पेशली जो है हमारे गुलबर्गा की आवाम से और अवामुन्नास से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को इल्म के तरफ जो है, बिलखुसूस जो है दीनी इल्म के तरफ जो है तवज्जो दिलाए, क्योंकि आने वाले, मैं देख रहा हूँ कि गौर कर रहा हूँ कि आज जो हालात हैं, मेरी सोच है ऐसी, आज ऐसे हालात हैं, अगर 20 साल के बाद क्या होने वाला है हमारा। दुनिया में और भी बहुत सारे पेशे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है, डॉक्टर बना करके, इंजीनियर बना करके, साइंसदा बना करके, फ़िलासफ़ी बना करके, बहुत सारे पेशे हैं इस रोए ज़मीन पर। ये सारी चीज़ें इल्म के दायरे में आते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है। इल्म का सीखना, इल्म का सिखाना इसी से मालूम हो जाता है। और सबसे पहली वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से जो की गई वो क्या है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए आप अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। तो सबसे पहले वही, सबसे पहला ऑर्डर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मोहम्मद अरबी की जानिब जो हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या चीज़ थी? सीखना, पढ़ना, पढ़ाना। देखिए इक़रा कहा गया, ये नहीं कहा गया इस्मा, सुनो, इक़रा कहा गया। इससे मालूम होता है कि पढ़ने से इल्म मजबूत होता है, सुनने से इल्म मजबूत नहीं होता है। तो आदमी सबसे पहले अपने अंदर सीखने का मादा, पढ़ने का मादा वो अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 3 जुलाई आज एक शानदार स्कूल के इफ्तिताह में मैं आया हुआ था, जो हमारे जनाब मिस्टर एंड मिसेस सरफराज अहमद ख़ान साहब की तरफ से ओपनिंग अमल में आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल का जायज़ा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में हमारे इस रीजन को, हमारे इस जो एरिया है, इस एरिया को मद्देनज़र रखते हुए इस स्टैंडर्ड का स्कूल यहाँ पे हम यानी नियर इसमें हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारे एरिया में इतना बेहतरीन और इतना अच्छा और इतना फुल फ्लेज स्कूल हमारे क़ायम होगा यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर पे सरफराज, मिस्टर एंड मिसेस सरफराज अहमद ख़ान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये इनिशिएट किए हैं, ये तालीमी मैदान में आए हैं, और ख़ास तौर पे हालात आज के मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी बन गया है कि दुनिया और आखिरत दोनों तालीम हमको चाहिए, दुनियावी तालीम भी चाहिए, दीनी तालीम भी चाहिए। तो इस तरीक़े से यहाँ पे जब इस स्कूल का जायज़ा लिया गया और यहाँ के टीचर्स और स्टाफ के बारे में हमने तहक़ीक़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टीचर्स हैं ये दोनों
दुनियावी और दीनी तमाम उलूम में माहिर टीचर्स हैं। हमारे तमाम आने वाले दवाखाने को आने वाले तमाम मरीज़ों से, उनके वालिदैन से हम कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्कूल्स, अच्छा स्कूल सिलेक्शन करना भी, ये भी बहुत आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ अच्छा स्कूल ने आपने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज़ अच्छी है। आप लोगों की एक ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने घरों में दो चीज़ों की पाबंदी करना है। सबसे पहला है कि मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखें। दूसरा है जिस्मानी तौर पे जो बच्चे आज दुकानों की चीज़ें खा रहे हैं, जो जंक फूड्स बोलते हैं, ये दो चीज़ों से आप अपने बच्चों को महफूज रखिए। ये दोनों, क्योंकि जंक फूड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान की न्यूट्रिशन टोटल ख़त्म हो जाता है। न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, दिमागी सलाहियतें ख़त्म हो गई। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ ये है कि जो भी टास्क या जो भी होमवर्क बच्चों को दिया जाएगा, मोबाइल के थ्रू मत दीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू मत दीजिए। जो भी देंगे आप अपने बुक्स में लिख के, जैसे पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमको होमवर्क या हमको जो टास्क दिया जाता था वो किताब में हमारी हैंडबुक में लिख के दिया जाता था। फिर से ये कोविड से ये चीज़ चालू हुई है जिसका बेइंतहा मिसयूज़ हो रहा है। दूसरी एक मैनेजमेंट से हमारी एक गुजारिश है कि ख़ास तौर पे यहाँ पे आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या कोई भी मीडियम्स के स्कूल्स हैं, यहाँ पे और एक चीज़ हम जो टोटल नेगलेक्ट कर रहे हैं वो है कन्नड़ा लैंग्वेज का सीखना। कन्नड़ा सब्जेक्ट होता है हमारे पास, हमारे बच्चे बेहतरीन कन्नड़ा लिख सकते हैं, बेहतरीन ओरली पढ़ सकते हैं, मगर स्पोकन एबिलिटी हमारे बच्चों में नहीं है। तो ख़ास तौर पे हम स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीक में एटलीस्ट एक बार 1 घंटा स्पोकन कन्नड़ा की क्लासेस रखी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस ओपनिंग में आके मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज हम लोग इल्म के तरफ, हम लोग मतलब हमारी कौम के जो ज़िम्मेदार हैं, बाबा खान साहब की फ़ैमिली जो गुलबर्गा में सोशल वर्क करते आ रही थी, और उसी के सीरीज़ में हम ये देख रहे हैं कि खान साहब का बड़ा बेटा जो है ना अपना पहला स्टेप एजुकेशन से जो है ना स्टार्ट किए हैं। और एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे घरों के, ख़ानदानों के और हमारे माशरे की तब्दीली आना जो है ना तय है। तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इस चीज़ से भी मालूम होती है कि जिस घर में, जिस बच्चे में, जिस ख़ानदान में अगर कोई एक एजुकेटेड आदमी है तो उस बच्चे में, उस ख़ानदान में जो है ना बहुत सारे तब्दीलियाँ आते हैं। तो यहाँ पे इस स्कूल के इनाग्रेशन में मैं यही चाहूँगा कि एजुकेशन को पैसे से ना देखते हुए, भाई कोई बच्चा डॉक्टर बना तो ये कमाता है, इंजीनियर बना तो सऊदी जाता है, बजाय उसके मैं मैनेजमेंट से भी ये कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे अपने लेवल पे मैं जब भी पेरेंट्स से या कहीं पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाता हूँ तो मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि अब हमारे माशरे में हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने। इस स्कूल में प्रैक्टिकल लैब्स, जैसा ये स्कूल अब तो ये 4th स्टैंडर्ड का है, उसमें मैं देखा कि कंप्यूटर लैब का जैसा सेक्शन है, जैसे ही ये स्कूल इंशाल्लाह प्रोग्रेस होगा 6th या 8th स्टैंडर्ड में जाएगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स की भी जो है ना सहूलतें आएँ, ताकि प्रैक्टिकली हमारी अपनी कौम के बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम में हमको कंपटीशन में आना है, अच्छे साइंटिस्ट बनना है, डिफेंस में जो है ना हमको अल्हम्दुलिल्लाह आना है, तो इन स्कूलों के एस्टेब्लिशमेंट से ही ये चीज़ जो है ना पॉसिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज स्टडी ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का दोबारा इफ्तिताह अमल में आया है, जिसको रीओपनिंग कहते हैं। ये स्कूल पाशापुरा पर चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह नई बिल्डिंग में यहाँ पर मुंतकिल हुआ है। तो यहाँ पर तालीम मॉन्टेसरी से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक दी जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ दोनों जो है इस पर कवर किया जा रहा है।